ایک رات پھر مجھے وہی دورہ پڑا اور میرے ہاتھ پاؤں اینٹ گئے، دماغ بوجھل ہو گیا اور سینے میں جلن ہونے لگی اور آنکھیں ابلنے لگیں۔ گھر میں سب سو رہے تھے اور میں اپنے بستر پر موت و زیست کی کشمکش میں پڑا تھا اور کوئی میری مدد کے لیے بھی نہیں آیا، کیونکہ میری چیخ حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی اور اس عالم میں بھی چھت پر حسب سابق کچھ شبیہ سی دکھائی دی۔ کچھ سائے گڑ مڑ ہوتے ہوئے نظر آئے اور میں نے خوف و دہشت سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا اور اس سے میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ کسی دشمن کی طرح مجھ پر جھپٹی اور میرے سینے سے چمٹ کر سسکنے لگی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا موہن، وہ رقت امید آواز میں بولی، مجھے اپنے سینے میں چھپا لو۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شاردا شگفتگی اس وارفتگی سے میرا خیر مقدم کرے گی۔ چند لمحوں کے لیے تو میں ساکت ہو گیا، پھر میں نے اس کی قبر میں اپنے بازو حمائل کر دیے اور وہ جلد ہی مجھ سے علیحدہ ہو گئی۔ آنسوؤں کے درمیان بولی، خطرے کا الارم سن کر میں سمجھی تھی کہ آج شاید پھر مہیش کے آدمیوں نے تمہیں مجھ سے جدا کرنے کے لیے کوئی خطرناک جال بچھایا ہے، لیکن وہ تو خود ہی مر گیا۔ مجھے افسوس ہے شاردا، اس کے سوا مجھ سے کچھ نہ کہا گیا۔ اس نے میرے تعدیتی جملے کا کوئی اثر نہیں لیا اور وہ خفت سے بولی، تم سے پریت نے زیادتی کی ہے، میں اس پر بہت شرمندہ ہوں اور اسی لیے چھپ کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ شاردا، مجھ سے اتنی قریب مت آؤ، میں نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ پریت نے میرے ساتھ صحیح رویہ اختیار کیا تھا، تمہیں اس پر نادم ہونے کی ضرورت نہیں۔ کاش میں سب کو بتا سکتی کہ میرا تم سے کیا سمبت ہے، ادھر کیا ہوا، اور میں نے اس کی جذبات انگیز گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ وہاں اس کا چہرہ غم میں ڈوب گیا۔ اس دنیا میں ہی فیصلہ ہو رہا ہے موہن، مہیش چندر کی موت اچانک نہیں ہوئی، پرکاش بھون میں کسی وقت بھی کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ یہاں کا روٹین ہے، کیا خبر کل کس کی باری آ جائے۔ وہ میرا بھائی تھا، تم مجھے بہت سنگ دل کہو گے، مگر میں ایک جھوٹی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ میرا بھائی تھا، مگر اسے نہ میری فکر تھی نہ مجھے اس کی۔ میں مر جاتی تو اس کا حال بھی اس وقت مجھ سے مختلف نہ ہوتا۔ میں اسی لیے تم سے کہتی ہوں کہ یہاں کوئی رشتہ، کوئی آدرش، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بھگوان کے لیے مجھے اس نرک سے نکال لو۔ وہی ایک بات جسے سن سن کر میرے کان پک چکے تھے اور جس کا کوئی معقول جواب میرے پاس نہیں تھا۔ شاردا مجسمہ طفا تھی، اس کی غزالی آنکھوں میں میرے لیے پیار ہی پیار جھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرا نام لکھا تھا۔ مجھے اس اپنائیت کا بڑا ڈر لگا۔ شاردا جس شخص کی طلبگار ہے وہ کون ہے؟ اگر اسے معلوم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے لہجے کی مٹھاس مجھے زہر لگی، اس کے میٹھے بول مجھے گالیاں محسوس ہوئے۔ شاردا اپنی بہنوں کو چھوڑ کر صرف پربت کی تلخی امیز گفتگو دھونے اور میری خیر خبر پوچھنے آئی تھی، اس لیے وہ مجھے کچھ بتائے بغیر چلی گئی۔ میرے اضطراب میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں سر جھکائے منہ لٹکائے فرش پر بیٹھ گیا۔ اندر سے مالتی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب انتشار حد سے سوا اور برداشت سے باہر ہو گیا تو میں بڑے کرب سے اٹھ کر چلا آیا۔ وہ چاروں بہنیں مالتی سے گفتگو میں مصروف تھیں۔ اب میرے قدم مہیش چندر کے محل کی جانب اٹھ رہے تھے۔ جو ہونا ہے ہو جائے، میں نے جمشید میاں کو سمجھا لیا تھا اور بزدلی کا تانا دے کر ان کے اندر حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کر دی تھی۔ مہیش چندر کے محل کے راستے میں سنسنی خیز چہل پہل تھی۔ رانیاں، راجکمار، داسیاں، دوسرے ملازم، مہمان اور ریاستی پولیس۔ مجھ میں کچھ توانائی آئی۔ مہیش چندر کے خوابگاہ کے باہر مسلح پہرا لگا ہوا تھا اور ملازموں کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے باوجود وہاں ملازموں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس عرصے میں ریاست کے سرکردہ افراد بھی جمع ہو چکے تھے اور رانیاں آنکھوں پر رومال رکھے رنج و غم میں ڈوبی کھڑی تھیں۔ میں بھی ایک طرف کھڑا ہو کر صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک خوابگاہ کا دروازہ کھولا۔ سنتری راستہ دینے کے لیے ادب سے پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے دیکھا کہ پارو ایک پولیس افیسر کے ساتھ باہر آ رہی ہے۔ دروازے پر ان دونوں کے درمیان کچھ بات ہوئی، پھر پولیس افسر چلا گیا۔ پارو رومال سے اپنے آنسو خشک کرتی واپس اندر جانا چاہتی تھی۔ میری نظریں اس سے چار ہو گئیں۔ میرا خیال تھا کہ مجھے دیکھ کر وہ چونکے بغیر نہ رہ سکے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے برخلاف پارو کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک ابھری۔ اس نے مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میرے رگو وپے میں ایک سنسی لہرانے لگی۔ میں نے اپنے قدم زمین پر سختی سے جمائے اور سنتریوں کے درمیان سے ہوتا ہوا پارو کے پاس چلا گیا۔ موہن داس، وہ مرتعش آواز میں بولی، تمہارا کنور ہمیں چھوڑ گیا، اسے جے پال نے قتل کر دیا۔
हैरत से मेरी पुतलियां सुकड़ गईं। सर्द हवा के थपेड़े ने मेरे जिस्म चीर कर रख दिया। मैंने खुद पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। रानी साहबा, मेरा गला रूंधने लगा। मैंने सुन लिया है, पर कनौर जी तो ऐसे ना थे, अभी उनकी उम्र ही क्या थी। तुमसे तो वह बहुत प्रेम करते थे, पारो ने इतनी बुलंद आवाज में कहा कि करीब खड़े हुए संतरियों ने भी सुन लिया। आओ मेरे साथ। मैंने पारो की तकलीद में कमरे में कदम रखा तो एक लम्हे के लिए जहन चकरा कर रह गया। रियासत के बड़े बड़े आदमी मोहेश चंद्र के कमरे में बैठे थे। ख्वाबगाह का दरवाज़ा खुला हुआ था। पारो मुझे वहाँ ले गई। सामने फर्श पर मोहेश चंद्र की लाश पड़ी थी। जो खंजर मैंने उस पर इस्तेमाल किया था वो उसके दिल में प्यूसर था। पुलिस अफसर एक एक चीज़ का जायजा ले रहे थे। मोहेश से 10 कदम के फासले पर जयपाल की लाश मौजूद थी। पहली नज़र में यही नतीजा अखज़ किया जा सकता था कि जयपाल ने मोहेश चंद्र पर कातलाना हमला करने के बाद फरार होने की कोशिश की, लेकिन मोहेश ने मरते मरते उसे भी हलाक कर दिया। मैंने खेत अंदाज में रिवाल्वर घूर रहा था जो मोहेश चंद्र के हाथों में डलका हुआ था। पारो ने बड़ी खूबसूरती से ना सिर्फ जाए वारदात तब्दील कर दी थी, बल्कि कत्ल का बेहतरीन नक्शा भी बना दिया था। उसकी सूजी हुई आंखों में, उलझे हुए बालों और यास ज़दा चेहरे से मोहेश चंद्र के साथ उसकी मोहब्बत की गुमाजी हो रही थी। मोहेश की लाश के बाएं जानब पलंग पर उसका छोटा भाई वीनेश चेहरा हाथों में छुपाए सिसक रहा था। मैंने अपने आंसू आस्तीन से पूछे। वहाँ ज़्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं था। मैं वापसी के इरादे से दरवाजे की जानब पलटा तो पारो ने करीब आकर सरगोशी की। एहतियात रखना मोहनदास, ज़ुबान पर ताला लगा लेना। ना जाने कैसे मेरी ज़ुबान पर यह फ़िक्र आ गया और मैंने मजबूत आवाज़ में कहा, पारो रानी, तमाशा अभी ख़त्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। आप भी खादम का ख्याल रखें, कोई ऐसी वैसी बात ना करें वरना। पारो मेरी सूरत देखती रह गई। उसका जवाब सुनने की बजाय मैं तेज़ी से बाहर निकला और अब के अंदर की तरफ वापस जाने की बजाय आम रास्ते पर चलने लगा। वहाँ मुझे 2 लाशें और नजर आईं जिनके गिर्द पुलिस का पहरा था और वह चादर में ढकी हुई थीं। गोया पारो और उसके आदमियों ने वारदात अच्छी खासी पचीदा बना दी थी। इधर सदर दरवाजे पर संतरी मारे गए। पुलिस को सोचने के लिए बहुत कुछ मिल गया था, नतीजा अखज़ करने के लिए कुछ नहीं रह गया। पारो ने मोहेश चंद्र की ख्वाबगाह में जिस अंदाज से लाशें तरतीब दी थी, वो नक्शा पुलिस के अच्छे से अच्छे अफसर को बहका सकता था। मैंने उस नक्शे से कई बार खुद को मुतल्लक किया, मगर कहीं भी फिट नहीं हुआ। वजह यह थी कि पारो का नुक्ता नज़र बदल गया था। चलते वक्त पारो के सामने मेरी ज़ुबान से खुद ब खुद एक फ़िक्रा निकल गया। मैंने पारो के चेहरे पर उसका जो रद्द अमल देखा था, उसने मेरे जिस्मो जान यकसर बदल दिए। मैंने अपने खौफ पर हकारत महसूस की। उस वक़्त मुझे भूख लगी। प्रकाश बूंद में चलने वाली हवाओं ने मेरे दिमाग को बड़ी फ़रत पहुंचाई। मैं लंबे लंबे कदम उठाता हुआ शारदा की जानब पहुंचा। उससे और उसकी बहनों से जुरातमंदाना लहजे में मुखातब हुआ। मुझे अपने लहजे की तब्दीली का खुद एहसास हुआ। आवाज़ भारी थी और उसमें एतमाद था। मैंने उनसे कहा कि कत्ल का सुराग लगाना आसान नहीं, ये कोई बड़ी साजिश है। तुमने क्या देखा? और शंतला ने जुस्तजू की। मैंने महसूस किया कि वहाँ जो लोग खड़े हैं उन्हीं में से कोई कातिल है। पछताना बेकार था। मैं जोश में ऐसी बात कर गया था। ये तुमने कैसे महसूस किया? प्रीत ने पूछा। मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा दिल यही कहता है। पागल, प्रीत और शशि ने मुंह बनाया और एकदम पागल है। शारदा ने मुझे कमरे की सफाई का हुक्म देकर उस कशमकश से निजात दिलाई और मैं अपने क्वार्टर में चला आया। डाली घर में मेरी मुंतज़िर थी और आसमान की तरफ हाथ उठाए दुआएं कर रही थी। वो जैसे बैठी थी वैसे ही मैंने उसे कोली भर कर उठा लिया और अंदर ले जाकर बिस्तर पर छोड़ दिया। सब ठीक हो गया है, मैंने मुसर्रत से कहा। डाली बेताबाना मेरे गले लग गई। मैं उस दिन बहुत सरगर्म रहा और मैंने एहतियातन शारदा को यह बता दिया कि उसका पिस्तौल मेरे क्वार्टर में मौजूद नहीं। पिस्तौल मैंने बाग में एक जगह दफन कर दिया है। पिस्तौल की गुमशुदगी की खबर पर शारदा चौंकी जरूर, मगर उस दिन ताज़ियत करने के लिए आने वालों का ऐसा हजूम था कि पिस्तौल के मुतल्लक ज़्यादा गुफ्तगू ना हो सकी। मैं इसलिए मुतमिन हो गया कि शारदा के पिस्तौल की गोलियों से संतरी हलाक हुए थे। मोहेश चंद्र खंजर से, जयपाल मोहेश चंद्र के पिस्तौल से और राहतदारी में मरने वाले दोनों मुलाजम किसी और पिस्तौल से हलाक हुए थे। पुलिस की तवज्जो सबसे पहले इमारत के अंदर वाली लाशों पर गई। वहाँ मेरा कोई निशान मौजूद नहीं था। वैसे सोचने के लिए अब भी बहुत सी बातें थी। मोहेश चंद्र की लाश जब दूसरे दिन शाम को तमाम तफ्तीश से फारग हो गई तो क्रियाक्रम का वक़्त आया। तमाम दिन प्रकाश बूंद में गाड़ियां दौड़ती रही थीं
मुहेश चंद्र के महल के बाहर चबूतरे पर उमराए रियासत, वालियान रियासत और मुअज़्ज़ज़ीन शहर का इज्तिमा था। हसीनो जमील औरतें मातमी मलबूसात पहने एक तरफ खड़ी थीं। पारो बहुत सरगर्म और बहुत उदास नजर आई थी। वीनेश चंद्र सबसे नुमाया था। अब वही प्रकाश बून का सबसे मुमताज़ शख्स था। मेरी आंखें उस हजूम में शारदा को ढूंढ रही थी। मैं ये देखकर ठठक गया कि वह सफ़ेद शेरवानी में मलबूस एक नहायत खूबरो दिलकश सुर्ख और सफ़ेद नौजवान के साथ अलग होकर बातें कर रही है और उसके साथ सिर्फ प्रीत और शंतला थीं। नौजवान की नखियों से शारदा का जमाल देखता और बातें करने लगता। शारदा ने स्याह साड़ी पहन रखी थी। जहाँ जहाँ उसकी जिल्द झलक रही थी, वहाँ वहाँ बादलों की ओर से चांदनी छट रही थी। मैंने कदीम मुलाजम से उस नौजवान के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि वह रियासत के प्रकाश बून जैसे ही एक अमीर और बाअसर घराने का नौजवान है और उसका नाम जगदीप है। मुझे वह शख्स बहुत खूबसूरत लगा, मगर शारदा से उसका रबत समझ में नहीं आया। मुझ में पहली बार शारदा की कदर व कीमत का एहसास जागजीन हुआ और मुझे आज वो अक्सर अप्सरा नजर आई और उसके और अपने दरमियान हज़ार मीलों का फासला दिखाई दिया। गो वो किसी खुशगवार मौजू पर बातें करते नजर नहीं आ रहे थे। ताहम मैंने नौजवान की आंखों में एक ख़ास चीज़ देखी थी, वो ख़ास चीज़ जो सब महसूस नहीं कर सकते। मुहेश चंद्र की अर्थी उठते वक़्त प्रकाश बून में आहोजारियाँ होने लगी। ऐसा शोर हुआ कि मुझे मुहेश के बारे में अपनी राय पर नज़रसानी करनी पड़ी। जिसके लिए लोग इतना रोते हैं वो यकीनन कोई महबूब शख्सियत होगी। इन मातमी आवाज़ों, सीना कुबियों, बिछाड़ों और आंसुओं से मैंने ये जाना कि मेरे हाथों कोई फरिश्ता कत्ल हो गया है। आरती सदर दरवाजे से बाहर चली गई। मैं बाहर निकला। बहुत दिनों बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो प्रकाश बून एक बहुत बड़ा जेल खाना लगा, जिससे आज मुझे रिहाई नसीब हुई थी। मेरा जी चाहता था कि ज़मीन पर लोट लगाऊं और बाज़ारों में जाऊं, कोई सिनेमा देखूं, किसी तवाइफ के कोठे पर गाना सुनूं, किसी होटल में बैठकर चाय पीऊं और एक बीड़ा मुंह में रखकर सिगरेट का गहरा कश लगाऊं। आरती चली गई तो मैं दोबारा अंदर आ गया और एक बार फिर बाहर आ गया। प्रकाश बून में अफरा तफरी की वजह से सदर दरवाजे पर संतरियों का माकूल इंतज़ाम नहीं था। मैं एक बार नहीं 100 बार अंदर बाहर जा सकता था। मैं भागकर आरती के हजूम में शामिल हो गया और मुलाजमों के गिरोह से निकलकर आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा मेरे कदम ज़मीन ने जकड़ लिए। मुहेश चंद्र की आरती के इर्द गिर्द कई पिंडत जमा थे। करछे वाला पिंडत ऐश्वरी लाल भी मौजूद था। उसने मुझे देखा तो उसके माथे पर शिकने पड़ गईं। मैंने सूरत हाल के उस पहलू पर गौर नहीं किया था। मुझे इस मामले पर भी गौर करना चाहिए था कि कीचू ने पुरअसरार तरीके से कई बार मेरी मदद की थी और महेश चंद्र के यहाँ आने वाले साधु ने मेरे माजी के बारे में सब कुछ जान लिया था। मैं ऐश्वरी लाल की नज़रों की ताब न ला सका, इसलिए चुपके से पीछे खिसक गया और मुलाजमों में शामिल होकर दाएं तरफ किनारे पर चलने लगा। मरगढ़ से चंद फरलांग पहले मैंने पीछे से एक आवाज़ सुनी। मुड़कर देखा तो सिटी गुम हो गई। वही साधु मौजूद था जिसके सामने मेरा माजी आईना था। मेरी रफ्तार में लुकनत आ गई। सुन बालक, उसकी आवाज़ आई। मैं वहीं जम कर रह गया। उसी असना में साधु मेरे पास आ चुका था। मेरी नज़रें ज़मीन में गड़ गई थीं। साधु का लम्हा मुशफ़क़शाना था और मैं आंखें ऊपर कर मैंने सरासमीगी सी निगाहों से उठाई और उसके चेहरे पर कोई जज्बा नहीं था। मुझसे जल्द मिलना, उसने 3 लफ्ज़ों में कहा। कब महाराज? मैंने कांपते हुए पूछा। जल्द ही, और वो आगे बढ़ गया। मेरे जिस्म से मेरी रूह खींच कर ले गया। मुझे दोबारा उसके पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। अब मरगढ़ तक जाना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था, मगर मैं वापस भी नहीं हो सकता था। उसके बाद मैं छुपता छुपाता मुहेश चंद्र की आरती जलाकर सीधा भून वापस आ गया और अपने बिस्तर पर निढाल होकर गिर गया। खुशकिस्मती से डाली बहस मबासे के लिए मौजूद नहीं थी। पारो के पास से सरशार वापस आने के बाद जो चंद घंटे मुसर्रत और इत्मीनान से गुजरे थे वो भी रास नहीं आए। ना जाने बून में क्या होता रहा। मुहेश चंद्र का शोक कैसे मनाया जाता रहा, मुझे उसकी कोई खबर नहीं। आसाब पर इतना दबाव पड़ा था कि तेज़ बुखार आ गया। डाली 35 से लगकर बैठ गई और मुझे 3 दिन तक अपना होश नहीं रहा। लम्हों के लिए जब भी होश आता मेरी नज़रें शारदा को ढूंढती। वो नज़र ना आती तो मैं बेखबर हो जाता। मैं शायद बुखार में तप पर मर जाता अगर उस रात की चो इयादत के लिए ना आती। डाली सरहाने से टिक कर गाफल हो गई थी। मुझे पानी की तलब हुई। वो सो रही थी। मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा।
यका यक अंधेरे में एक हाथ गिलास में पानी लिए मेरी तरफ बढ़ा। कौन? मैंने नकाहत से कहा। कीचू, किसी ने आहिस्तगी से जवाब दिया। कीचू, और मैंने बाएं जन मुड़ कर देखा, उसका साया लहरा रहा था। अंधेरे में उसके नकुश वाजे नहीं थे। तुम आ गई, मैं तो तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा था। लो ये पानी पी लो। और उसका तरन्नुम बिखर गया। मैंने उसके हाथ से गिलास थाम लिया और एक लम्हे में उसे खाली कर दिया। कीचू, मैं मर रहा हूं, मैंने टूटे हुए लहजे में कहा। तुम अभी नहीं मर सकते, उसकी दिलकश हंसी सुनाई दी। मैं क्या करूं कीचू, खुदा के लिए मेरे सामने आओ। मुझे बताओ कि तुम कौन हो, तुम क्यों मेरे पास आती हो, और जब मुझे ज़रूरत होती है तो तुम क्यों नज़र नहीं आती। मैंने हज़ियान बका। अभी नहीं, उसके तकल्लुम में एक तहक्कुम था। कब? फिर कब? तुम मुझे अपने पास ही समझा करो जमशेद। अपने पास तो मैं खुद भी नहीं हूँ कीचू। ये पर्दा हटाओ, मेरे सामने आकर बात करो, मैं तुमसे खूब बातें करूंगी। मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ। अभी तुम्हारी आंखें मेरा चेहरा देखने की कुव्वत नहीं रखती। तुम क्या बहुत खूबसूरत या बहुत... मैं बदसूरत कहते कहते रुक गया। तुम मुझे किसी शक्ल में भी देखना पसंद करोगे, वो मैंने खेद अंदाज में हंसी। तुम जैसी भी हो, मेरी मौसन हो, मुझे तुम्हारी हर शक्ल कबूल है। मेरे बारे में भी इतना ना सोचा करो कीचू, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मेरा बड़ा भाई भी पागल हो गया है। सारे खानदान में कोई नहीं बचा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। इतने सदमे बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। तुम्हारे पूजने वाले तो बहुत हैं। तुम बहुत खूबसूरत आदमी हो, वो लजाई हुई आवाज में बोली, मगर तुम्हें अपना पता ही नहीं है। तुम अभी तक बच्चे हो, बच्चों की तरह डर जाते हो। जरा जरा सी बात पर तुम्हारा दिल धड़कने लगता है, और कभी तुम इतने मर्द बन जाते हो कि खून कर देते हो। तुम बहुत अजीब आदमी हो। अपने में हिम्मत पैदा करो जमशेद, ये बुरे दिन गुजर जाएंगे। तुम कोई इन लोगों से कम हो, तुम्हें अपना अंदाजा ही नहीं है। हाँ, मैं एक बच्चा हूँ, उस बच्चे की उंगली तुम थाम लो ना, मैंने झंझलाकर कहा। मैं तुम्हारी उंगली जरूर थामूंगा, मगर उस वक्त तक मैं मर जाऊंगा। हर तरफ खतरे लपक रहे हैं। तुम्हारा ये है कि तुम कभी नजर आ जाती हो, कभी नहीं। मैं तुमसे पूरी तरह वाकिफ भी नहीं हूँ। मैं मुसीबत के वक्त तुम्हें पुकार भी नहीं सकता। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अंधेरे दूर हो जाएंगे जमशेद, मगर अभी रास्ते में बहुत से पत्थर हैं। कौन से पत्थर? क्या तुम भी? हाँ, उसकी आवाज़ में पहले जैसा जमाव नहीं था। क्या? और हैरत से मेरी आंखें फैल गईं। मुझे और परेशान कर रही हो? सो जाओ, और जब सुबह उठो तो अपने दाएं बाएं आगे पीछे देख कर चलना। तुम दिमाग से काम लेने की कोशिश करना। अब तुमसे मुलाकात कब होगी? मैं किसी दिन खुद आ जाऊंगी, जब मैं बुखार में जल रहा हूँगा या कोई मुझे कत्ल कर रहा होगा। मैंने तंजन कहा। नहीं, जब तुम बहुत परेशान होंगे। मैं खुशकस लम्हे रहता हूँ। जब तुम बीमारियों से वाकिफ हो तो बार बार की बजाय एक बार में सारी परेशानियां दूर क्यों नहीं कर देती? क्या मुझे सताने में मज़ा आता है तुम्हें? तुम बहुत भोले हो, और ये बातें तुम्हारी समझ में देर से आएंगी। डाली कसमसाने लगी थी। कीचू का पुर इसराया साया दूर होने लगा। मैं नकाहत के बावजूद पलंग से उठ गया और उसके पीछे दौड़ा। कीचू, कीचू, और मैंने अपनी कमज़ोर आवाज़ में उसे पुकारा। सिर्फ एक बात बताती जाओ। वो शहर में रुक गई। कहो, वो लर्जीदा लहजे में बोली। इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए? वो बूढ़ा साधु मुझे मिला था, कह रहा था कि मैं उससे मुलाकात करूं। उस करछे वाले पंडित के तेवर भी अच्छे नहीं थे। उसने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने उसे टोका, तुमने कुछ बताया नहीं। तुम उन्हें खुश रखने की कोशिश करना और दिमाग से काम लेना। उसने एक मुबहम सा जवाब दिया। मैं उस अबहाम की तशरीह की फिक्र में था कि यकायक कीचू का साया मेरी नज़रों से उजल हो गया। डाली ने मुझे उठाया तो मैं सहन में दरवाजे के करीब ऊंधा पड़ा था। वो बकती झुकती रोती पीटती सहारा देकर मुझे पलंग पर ले आई। मेरा जिस्म पसीने में नहा रहा था और दिमाग कीचू की ज़ात में उलझा हुआ था। सुबह होते होते बुखार उतर चुका था और ऐसा मालूम होता था जैसे मेरी पुशत से कोई वसन हटा दिया गया हो। मैं गुज़श्ता 3 दिन की बेहोशी के दौरान में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में डाली से पूछ गुछ करने लगा। उस बात पुरुष का मकसद ये था कि शारदा का जिक्र करूं। तमन्ना थी कि उसकी तरफ से मेरी बीमारी पर गहरी तशवीश की गई हो, मगर डाली के जवाबात ने मुझे मायूस किया। सिर्फ एक बार मालती मुझे बुलाने आई थी। वो मेरा जिस्म तपता देखकर उल्टे कदमों वापस चली गई और दोबारा नहीं आई। डाली ने मतला किया कि महेश चंद्र के कत्ल के सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों पर शुबा किया जा रहा है, मगर उनमें मेरा नाम किसी भी जगह नहीं है। महेश का तेजा हो चुका था और आज विनेश चंद्र अपने बड़े भाई की जगह संभालने वाला था। मैंने ये खबरें तहम्मुल से सुनी। रात मेरी
मेरी चारागर कीजू ने जो बातें की थी उनका जहर मेरी रगों में फैल रहा था। अब मुझे उस वक़्त तक अपनी दी हिम्मती पर नादम होना और ताव खाना था जब तक मैं अपनी तर्ज अमल से खुद को न चौंका दूं, डाली को हैरज़दा ना करूं और कीचू को ना जिता दूं कि मेरी उम्र क्या है, मेरी दिमागी हालत किस कदर मतवाजन है, मेरे बाजों में कितनी ताकत है। डाली के मना करने के बावजूद मैं गुस्ल करके और नए कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। प्रकाश बूंद में पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। एक सोगवार सा दरो दीवार पर मुसल्लत था। प्रकाश बूंद में पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। एक सोगवार सा दरो दीवार पर मुसल्लत था। एक डर सा माहौल पर छाया हुआ था। मैं अभी थोड़ी दूर ही गया हूँगा कि डाली मुझे आवाज़ देती हुई आ गई। वो भी गुड्डे को पड़ोस में छोड़कर 3 दिन बाद जन्नान खाने की तरफ जा रही थी। उसने अपने दिलकश बदन पर एक उजली साड़ी पहन रखी थी और बड़ी भली लग रही थी। आते ही कहने लगी, मोहन, तेरे साथ चलते हुए दिन हो गए हैं। किसी मर्द के साथ चलते हुए औरत की ताकत दुगना हो जाती है और किसी औरत के साथ चलते हुए मर्द आधा रह जाता है। मैंने जहर खान से कहा, इस वक्त तेरे दिल में क्या समाई है? मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ, पर तू कातल हो गया है। मेरी बात सुनता ही नहीं। वो इतरा कर बोली, हाँ, अब तू भी ताने देने लगी। जा सबसे कह दे कि मैं वो सूर का बच्चा हूँ जिसने यह कत्ल किया है। मैंने तंदी से कहा, पागल, अरे बोले, तूने अब तक मुझे समझा ही नहीं। तू बहुत ही बुरा आदमी है। एकदम उल्टी सीधी बातें करने लगता है। काम की बात कर, क्या कहना चाहती है? छोड़, तूने मुंह का मजा ही किरकिरा कर दिया। अब तुझसे मैं कोई बात नहीं कहूँगी। और वो वाकई खफा हो गई थी। कुछ दूर तक मैं उसके साथ साथ खामोश चलता रहा और उसके बाद वो भी कुछ नहीं बोली। और फिर मुझे अपने रवैये पर अफसोस होने लगा। मैंने आहिस्तगी से कहा, नाराज़ हो गई? नाराज़ होकर कहाँ जाऊँगी? वो दिल शिकस्ता लहजे में बोली, मेरे साथ जाएगी। और मैंने उसे मनाते हुए कहा, तू ऊंची उड़ान करता है, तेरे लिए मैं निचला उड़ने लगूंगा। मैंने शौकी से कहा, बता ना। मैंने जिद की, क्या कह रही थी? वो बड़ी मुश्किल से कुछ कहने पर आमादा हुई। देख रे शेरू, यहाँ से भाग जाने का बहुत अच्छा मौका है। हमारे पास जेवर और इतने रुपए हो गए हैं कि हम कहीं भी चलकर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसके बाद पता नहीं हालात क्या हो जाएं। कहती तो तू भी ठीक है, पर एक बात तूने नहीं सोची। अगर इस वक्त हम फरार होने लगे तो हमारी हैसियत मशकूक हो जाएगी। अभी और वक्त गुजरने दे डाली। यहाँ कौन सी उम्र गुजारनी है? फिर वक्त नहीं आएगा, समझ ले, कोई और बात हो जाएगी। तो बिल्कुल चिड़िया हो गई है। आराम करने का वक्त आया है तो जाने को कहने लगी। अब तो मुझे कुछ हाथ पांव फैलाने दे, जख्मी हो जाएगा। ये बड़ी मनहूस जगह है। शेरू, अपनी औकात में रह, ज़्यादा पर ना निकाल। देखती रह। और वह हराम ज़्यादा तो ख़त्म हो गया। उसके ख़त्म होने से क्या होता है? दूसरा हरामी पैदा हो जाएगा। देर लगेगी मेरी रानी, मेरी गुड़िया। अब तेरे शेरू को तजर्बा हो गया है। तुझे मेरी कसम, ज़रा इंतज़ार कर ले। ये तो बता कि जयपाल की मौत का तुझे बहुत दुख हुआ होगा। मैंने उसे छेड़ने के लिए कहा। शेरू, वह गज़बनाक होकर बोली, ये तू क्या कह रहा है? बस बफर गई और उसके तेवर भांप कर मैंने घबरा कर कहा, तू बाज़ वक़्त बहुत दिल दुखाता है। फिर कुछ सोच कर बोली, मगर एक बात समझ में नहीं आती, कत्ल तूने किया और इल्ज़ाम जयपाल पर आया। डाली, मैंने डांट कर कहा, एहतियात से बात कर। खबरदार, ये जिक्र कभी ज़ुबान पर ना लाना। जैसे कुछ भी हो गया, खुदा का शुक्र अदा कर और भूल जा कि तुझसे मैंने कोई राज की बात कह दी थी। तू बड़ी अजीब चीज़ है शेरू। डाली मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, और पता नहीं कि तू है क्या। तू बहुत छुपा रुस्तम मालूम होता है। हाथ छोड़। और मैंने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, शारदा का हिस्सा आ गया था। डाली मुस्कुराती हुई दूसरी तरफ चली गई और मैं शारदा के कमरे पर दस्तक देने लगा। उस रोज़ मुझे शारदा से बात करने का मौका नहीं मिला। वो दिन भर अपनी बहनों के साथ मसरूफ़ रही। मैं मालती के साथ इधर उधर की बातें करके अपने आप को बहलाता रहा। मैंने शारदा की आंखों में वो अजनबियत तलाश करने की बहुत कोशिश की जिसका मुझे खदशा हो चला था, लेकिन मैं कोई नतीजा अखज़ करने से कासर रहा। उसने सरसरी तौर पर मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा और चौंका वो तनहा नहीं थी, इसलिए उसके बेगाने रवैये पर शुबा की गुंजाइश नहीं थी। भून में अब भी अमराई राजा पूर की औरतें तज़ियत के लिए आ रही थी। बाहर के मेहमान भी ठहरे हुए थे। मैं बाकायदा इरादे से टहलता हुआ महेश चंद्र के इलाके में जा पहुंचा। वहां मुझे उम्मीद के मुताबिक विनिश नज़र आ गया। अलबत्ता उसके साथ जो नौजवान था उसे देखकर मैं चौंक गया। वो जगदेव था। विनिश ने मुझे राहदारी में देख लिया था। वो मुझे अंदर आने का इशारा करके ड्राइंग रूम में चला गया।
चंद लम्हों बाद मैं भी वहां पहुंच गया और खिलाफ रिवायत हाथ जोड़ने के बजाय सीधे सादे अंदाज में मुअद्दब खड़ा हो गया। तुम कहाँ थे मोहनदास? विनश ने सादगी से कहा। बीमार था जनाब। मैंने दानिस्ता सरकार नहीं कहा। दानिश को मेरे लहजे की तब्दीली का शायद अंदाज़ा नहीं हुआ, मगर मुझे उसके तर्ज गुफ्तगू से मसरत हो रही थी। हमें मालूम है कि तुम सुर्गबाशी भाई साहब के ख़ास आदमी थे, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। सेवक हाजिर का जनाब। मैंने खुशामद का आंसर शामिल कर लिया, मगर मैं जानबूझ कर रुक गया। कहो क्या कहना चाहते हो? वो मचल गया। जनाब मैं इस घराने का नमक खाता हूँ। महेश चंद्र महाराज मेरा बड़ा ख्याल रखते थे, लेकिन मैं अपनी आंखों से जो देखता था उनसे कहने की हिम्मत नहीं रखता था। एक बार कोशिश की तो उन्होंने कान नहीं धरे जनाब। मैं खिदमत करता हूँ और जिसका नमक खाता हूँ बेहतर समझता हूँ कि उसके खिलाफ जो बात देखूँ उसके इल्म में ले आऊँ। मैंने इशारों में कई बार कहा, मगर कंवर जी ने मेरी ना सुनी और आज ये दिन देखना पड़ा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे दूर ही रखें। मैं दूर रहकर भी आपकी सेवा कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे आपके खिलाफ कोई बात नहीं सुनी जाएगी। जनाब मैं खुशामदी नहीं हूँ, साफ साफ कहता हूँ। विनश चंद्र ने मेरी बातें तवज्जो से सुनी और जज्बाती हो गया। मोहनदास, हम ऐसे मुलाजमों को पसंद करते हैं जो अपने मालिक की आंखों से पर्दा हटाने की कोशिश करें, और खुशामद हमें खुद पसंद नहीं। तुम आज से हमारे खास मुलाजम हो। ये बताओ कि तुम भाई साहब के कत्ल के बारे में किन लोगों पर शुबा करते हो? मैंने बताया था, मैंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। मैंने कंवर जी को समझाया था कि मुझे जयपाल बाबू के लक्षण अच्छे नहीं मालूम होते। उन्होंने नहीं मानी, अंधेरे में रहे और मारे गए। विनश समझता होगा कि मैं किसी और शख्स का नाम लूँगा, कोई इंकशाफ करूँगा, और मेरे बयान पर वो बुढ़ सा गया। वो कहता था कि उसे खुशामद पसंद नहीं है। मुझे हंसी आई कि खुशामद किसे पसंद नहीं। ये तो अभी नौजवान है, जगदेव ने अंग्रेजी में कहा। हाँ, और बड़ा मेहनती है। महेश चंद्र को आदमियों की बड़ी परख थी। उसने मुझसे उसकी कई बार तारीफ की थी। ज़रा कुछ गैर मुहज़्ज़ब है, विनश ने अंग्रेजी में जवाब दिया। बहुत स्मार्ट नौजवान है, नौकरों के मामले में तो बहुत खुशकिस्मत हो। विनश ने जगदीप की तारीफ पर इफ्तिखार से मेरी तरफ देखा और बोला, मैं उसे करीब रखूँगा, ये मुझे अच्छा लगता है। काम का आदमी है, प्राइवेट आदमी है। जगदीप ने राजदाराना अंदाज में कहा। नहीं, कुछ ऐसा खास नहीं, अलबत्ता काम लिया जाएगा, मगर औरतें खुद इस पर फिदा हो जाएंगी। विनश जगदीप की बात पर हंसने लगा और मुझसे मुखातब हुआ। मोहनदास, तुम अब इसी तरफ रहोगे, हमारी नज़रों के सामने, और हमारे मुतल्लिक़ जो कुछ सुनोगे किसी झिझक के बगैर हमें बताओगे। हम तुम पर एतमाद करते हैं जनाब, मगर मैं तो शारदा दीदी की खिदमत में रहता हूँ। मैंने उस तरह कहा जैसे मेरा तबादला तो नामुमकिन है। शारदा? जगदेव ने दिलचस्पी और हैरत से कहा। पहली बार मुझ पर शरफ़े कलाम बख्शा, और तुम शारदा की खिदमत करते हो? जी हाँ, मैं कहीं और काम नहीं कर सकता। वो मेरा मान करती हैं और लोग मुझसे जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। शारदा दीदी, मैं राजकुमार विनश की तरह ये खूबी है कि वो खरी बातें सुनना पसंद करती हैं। खुशामद उन्हें भी नापसंद है। अच्छा, जगदेव ने इश्तियाक से कहा। सुना है कि वो बहुत किताबें पढ़ती थीं, अब तो कुछ उनका जी उचाट हो चुका है। हाँ, जगदेव सर हिलाते हुए बोला, हालात भी उस भून के ऐसे ही हैं। शारदा हर वक्त लाइब्रेरी में घुसी रहती है। कल्चर और नफ्सियात उसके ख़ास मौजूआत हैं। सबसे कटी कटी रहती है, ज़रा कुछ सोशलिस्ट माइंड की है। ये तो बुरा है। जगदेव ने मुझे इस बार गौर से देखा और मैंने खेत अंदाज में बोला, उससे बात करना पड़ेगी, मैं उससे बहस करना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर, और विनश ने खंदा पेशानी से कहा, और ये कहते हुए मुझे जाने का हुक्म दिया, और वो मेरे बारे में शारदा से बात करेगा। मैं उन दोनों को सलाम करके बाहर आ गया। महेश चंद्र और विनश चंद्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। विनश में महेश जैसी पुख्ता कारी नहीं थी। वो चालाकी और सख्ती जो एक हाकम का शेवा होती है, वो धमक और गर्ज, वो तंतना और दबदबा अनका था जो महकूमों को खौफजदा कर देता है। मुझे यहाँ आए हुए खासा अरसा गुजर चुका था और मैं नरमो गरम से खूब वाकिफ़ हो चुका था। विनश नई जिम्मेदारियाँ संभालते हुए कुछ घबराया हुआ नजर आता था। वो अपने बाप और भाई की मौत कैसे फरामोश कर सकता, जिसका सबब यही गैर सरकारी इक़्तिदार था। महेश चंद्र के कातलों का सुराग नहीं मिला था और वो उसे भी किसी दिन निशाना बना सकते थे। विनश के लिए ये कांटों की सेज थी। उसमें बस इतनी सनसी थी कि उसका हुक्म अब सब के अहकाम पर फौकियत रखता था, और वह चार दीवारी में स्याह सफ़ेद का मालिक था। खजाना उसके इशारे पर लुट सकता था। महल की दासियां अब उसके इशारों की गुलाम थी। मैं विनश की मजबूरियां और उसकी खुशियां महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं भी एक नौजवान था।
जब मैं उसकी जगह खुद को रख कर देखता तो मुझ पर मुतज़ाद एहसासात तारी हो जाते। खौफ और खुशी के एहसासात उसके पास से आने के बाद मुझे उस पर रहम आने लगा और मैंने अपने चश्मे तसव्वुर से उसे औरतों के हजूम में घिरे हुए देखा और गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी, खून देखा और साजिशें सूंघी। भून के कई सरकर्दा और शोरीदा सरगुंडे मुलाजिम मर चुके थे और जो बाकी थे वो खासी सहमे हुए थे। उनके सर उठाने में देर होती, मगर अभी एक गिरोह मौजूद था। वो था पारो का गिरोह, जिसने जे पाल को कत्ल करने और मुहीश की लाश उठाने में बड़ी फुर्ती दिखाई थी। ये गिरोह पारो के इशारे पर मेरे लिए भी खतरा बन सकता था। इधर साधु थे जो प्रकाश बून के आश्रम और मंदिर में दंदनाते फिरते थे। उनका अमल दखल भी प्रकाश बून में कुछ कम नहीं था। अंग्रेज़ भी इधर का रुख करते थे और भून की औरतें भी संगीन साजिशों में मुलव्वस थीं। तो अजब ये था कि इतने बड़े हादसे के बावजूद किसी में हादसे की वजह जानने के बारे में वो अस्तराब तक नज़र नहीं आता था जो असूली तौर पर होना चाहिए था। उससे रियासत राजेपुर में जदीद तरीका तफ्तीश के फुकदान का पता चलता था या फिर जानबूझ के ये मामला दबाने की कोशिश की जा रही थी। सवाल ये था कि पारो अचानक मुहीश चंद्र से इतनी नाराज़ क्यों हुई और उसके कत्ल पर आमादा हो गई। मुमकिन है कि उसके डांडे कहीं और से मिले हुए हों, अंग्रेज़ों से या राज दरबार से, या कोई और घराना उसकी पुष्ट पनाही कर रहा हो। कुछ भी हो, और ये इतनी गैर अहम बात नहीं थी कि दरगुजर कर दी जाती। मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा इन पहलुओं पर मैं सोच रहा था, और मैं इसलिए सोच रहा था कि मैंने जहाँ बड़े दुख उठाए थे मेरे मुंह पर थूका गया था, मुझे कुत्ता कहा गया था, औरतों ने तमांचों से मेरी तवाज़ा की थी। यहाँ बेशतर लम्हों में मेरा खून खुश्क हो रहा था। मुझे बड़ी आज़ार पहुँचाए गए थे, ऐसी अज़ियतें दी गई थीं कि उनका ख्याल करते हुए शर्म आती थी। डाली कहती थी कि मैं यहाँ से भाग चलूँ, और मैं सोचता था मुहीश चंद्र के बाद अब यहाँ बहुत से हिसाब चुकाने का वक्त आया है। बाहर अब भी मेरे लिए ख़तरा था। बानू और बख्तावर के कत्ल का हवा दूर होकर नहीं देता था। उधर शारदा थी, मुलायम रेशमी चांदी और सोने जैसी लड़की। उसकी कशिश कदम पकड़ लेती थी। किसी लम्हे कोई फैसला करता था, किसी लम्हे कोई। मुझे खुद यकीन नहीं था किस वक्त मैंने जो फैसला किया है उस पर कारबंद भी रह सकूंगा या नहीं, क्योंकि अभी फ़िज़ा साफ नहीं थी। अभी पारो मौजूद थी। अभी वो आखिरी रिपोर्ट नहीं आई थी जिसकी रोह से मेरे बारे में कोई फैसला होना था। वो साधु किसी वक्त भी भून में आ सकता था जिसने मुझे खुद से मिलने का मशवरा दिया था। करछे वाला पिंडत भी आश्रम में था। शारदा मेरी सहारा थी। जगदीप के नमूदार होने से उसकी तरफ से भी एक महूम सा अंदेशा था। और कीचो थी, कीचो, जिस पर मुझे कोई कुदरत नहीं थी, मगर शायद ही उसी की पुरअसरारदात का नशा था कि मैंने साबित कदमी का रवैया अख्तियार कर लिया, या फिर यूँ था कि मुझे गैरत आ गई और मेरे अंदर का आदमी बालग हो गया था। जब मैं दोबारा शारदा के पास पहुंचा तो वो कई खूबसूरत लड़कियों में घिरी बैठी थी जिन्हें मैंने पहली बार देखा था। मैं चुपचाप अंदर दाखिल हो गया और शारदा को मसरूफ़ देकर बगली कमरे में घुस गया। मालती से मुझे मालूम हुआ कि वो जगदीप की बहनें हैं जो उसके साथ आई हैं, और मैंने तय कर लिया था कि आज शारदा से मुलाकात किए बगैर कमरे से नहीं निकलूँगा। मैं बगली कमरे के फर्श पर दराज हो गया। मालती मौका देकर मेरे पहलू में लेटने की कोशिश करने लगी। वो बड़ी ढीठ थी। जब तक मैंने उसे 3-4 चुटकियाँ नहीं भरी वो वहाँ से नहीं भागी, और थोड़ी देर में शारदा की आवाज़ पर मैं भागा गया और मुझे ये जानकर सख्त सदमा हुआ कि खिलाफ़ तवक्का शारदा ने मुझे अपने मेहमानों के लिए मशरूब लाने का हुक्म दिया, जबकि वो ऐसा नहीं करती थी। वो मुझसे काम लेते हुए कतराती थी, और इस वक्त मेरा ये शुबा यकीन में बदल गया कि शारदा जो मेरे साथ झोंपड़ी में रहने पर आमादा थी और बड़े बड़े वादे करती थी, अब बदल गई है। और जब ये महसूस हुआ तो कलेजे में सोजिश होने लगी। अगर मैं मुहीश चंद्र की मौत से पहले उसे लेकर फरार हो जाता और उसकी बहन शंकुतला की तरह उसे भी बरतने की कोशिश करता तो आज शीशे मेरी आंखों में ना चुभते। मैंने हुक्म के मुताबिक मशरूम पेश कर दिया। तमाम लड़कियां बेगौर मेरा जायजा ले रही थी और वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले मुस्कुरा रही थीं। ऐसी नज़रों का मैं आदी हो गया था, मगर मेरी तवज्जो सिर्फ शारदा पर मरकूज थी। जवान लड़कियों को देख रही थी और जिनकी नज़रों के अहाते में मैं खड़ा था। मशरूब पिलाने के बाद मेरे वहाँ खड़े होने की गुंजाइश नहीं थी और मैं चला आया। और जब सब लड़कियाँ अपने मस्कनों को सुधार गईं तो मैं शारदा के कमरे में नमूदार हुआ। मेरा जी चाहता था कि मुझसे पूछूं कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं और उसका क्या लगता हूं, और उससे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी
मेरे ज़हन ने खुद तमाम जवाब बर्जस्ता और दुरुस्त दे दिए कि मेरा नाम मोहन दास है। मैं एक गरीब और मुजरम शख्स हूँ और एक रईस दादी की खिदमत पर मामूर हूँ। और इन जवाबात के बाद उसे पूछने का महल नहीं था। मैंने अपने आप को तोल लिया था। चुनाचा मैं उसकी ख्वाबगाह में चला आया और वो भी मेरे पीछे पीछे चली आई। अंदर मालती थी जिसे उसने शंकुतला के पास किसी काम से भेज दिया और बहुत उदासी से बोली, मोहनदास तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ दीदी जी। मैंने शारदा के बजाय दीदी जी कहा। दीदी जी, और वह चौंक कर बोली, मेरा नाम शारदा है, मगर आप मेरे लिए तो बड़ी हैं, मैं आपका मुलाजिम हूँ। मोहन, मेरा दिल बहुत दुखी है, ऐसी बातें ना करो, उसने थके हुए लहजे में कहा। शायद तुम मुझसे नाराज़ हो। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें देखने के लिए क्यों नहीं आई। मेरा बहुत जी चाहता था, मगर यहाँ से फुर्सत ही नहीं मिली और तुम्हारे लिए दुआ करती रही और मेरा दिल तुम्ही में पड़ा रहा। मेरे कान में उसकी आवाज़ का शहर टपका, लेकिन उसी लम्हे मुझे जगदेव का चेहरा याद आ गया। आप समझ लीजिए कि एक शख्स आपसे बहुत संजीदा भी हो सकता है और उसका शीशा दिल इतना नाजुक है कि टूट भी सकता है। अरे मोहन, और वह वराफ्ता होकर बोली। फिर नाराज़ी से कहने लगी, पहले तो मुझे तुम कहो और उसके बाद बात होगी। आप तुम कहते हुए भी अब मुझे झिझक होती है। तुम बहुत ही नाराज़ मालूम होते हो मोहन। खुद सोचो कि मैं ऐसे वक्त में तुम्हारी तरफ तवज्जो कैसे दे सकती थी, जबकि 3 दिन से सोई भी नहीं हूँ। फिर और एक मसरूफियत तफसील से बताने लगी। मैं सुनता रहा, क्योंकि बोलते वक्त उसके रुखसारों में गड़ा पड़ जाता था और उसके सफ़ेद दांत मोतियों की तरह चमकते थे और उसकी सांसों से खुशबू आती। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैंने क्या सुना, और मैं तो बस उसे देखता रहा और उसकी आवाज़ देखता रहा। वो एक बेहद हसीन लड़की थी और मुझसे ही मुखातब थी, तो मैं समझ रहा था कि जैसे मैं कोई मालदार और अहम शख्स हूँ। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और उसकी हथेली पर बेशुमार बोसे नछावर किए, उसे आंखों से लगाया और उसे गर्दन में दबाया। ये तुम्हें आज क्या हो रहा है? उसने ख्वाबनाक लहजे में कहा। मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने तुम्हें दोबारा पा लिया है। तुमने ऐसा क्यों सोचा? बस यूं ही। कहीं तुम मुझसे इस वजह से तो नाराज़ नहीं हो गए कि मैंने इन लड़कियों के सामने तुमसे खिदमत ली? नहीं, मैं इस बात को अहमियत नहीं देता। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने तो तुम्हें जानबूझकर बुलाया था। वो बड़े बड़े राजकुमारों और महाराजों का जिक्र कर रही थी और मैंने सोचा कि उन्हें ज़रा तुम्हारी झलक भी दिखा दूं कि मेरा गुलाम भी ऐसा है, मेरा महाराजा भी ऐसा है। उसने मुझे ठोका मारा। शारदा, और मैंने वफूर जज्बात से कहा, तुमने मुझे ज़िंदा कर दिया है। मोहन, तुमने इस मरगड़ का माहौल देखा? वो शिकायती अंदाज में बोली। हाँ, और मुझे अफसोस है कि इस किस्म की बातें इस मौका पर कर रहा हूँ। वाकई तुम्हें अपने भाई की मौत पर गम होगा। गम? वह अफसुर्दगी से बोली। और मुझे तो एक ही गम है कि मैं यहाँ क्यों पैदा हुई, और पैदा हुई तो यहाँ क्यों मौजूद हूँ। बस अब अच्छे दिन आ रहे हैं। मुहेश तुम्हारा दुश्मन था। मैं नहीं समझती कि वो क्यों तुम्हारा दुश्मन था। शायद उससे ये शुबा हो गया था कि मेरा तुमसे या शंकुतला से कोई ताल्लुक है, मगर वो तुम्हें कोई और हुक्म देकर निकाल सकता था। तुम्हारी जान के पीछे वो क्यों पड़ा हुआ था? और मुझे इस बात पर हैरत है, और उन्हें क्यों कत्ल कर दिया गया, इस पर सोचना बेकार है। वो बेपरवाही से बोली। यहाँ सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, क्योंकि यहाँ सोना सबसे बड़ा दोस्त है। आप विनश महाराज के मार बने हैं। और मैंने खोए हुए लहजे में कहा, देखो अब क्या होता है। वो छत को घूरते हुए बोली। मैं हर तरह से उसकी गुफ्तगू से मुतमईन हो गया, मगर मैंने टो लेने के लिए उसे पूछा, तुम कब मेरे साथ चलोगी? कहाँ? वो पुरख्याल लहजे में बोली। अपने घर, अपनी झोंपड़ी में। मैंने मुस्कुराकर मैंने खिदी से कहा। ओह, और वह मुसर्रत से खिल गई। क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल, मगर मैंने तहम्मुल से कहना शुरू किया, अभी नहीं, अभी हम जाएंगे तो हम पर आसानी से शुबा किया जा सकता है। हमें मजबूरन यहाँ चंद दिन, चंद माह और गुजारने पड़ेंगे। उस वक्त तक हम अपनी आइंदा ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ सोच सकते हैं। तुम आज कितने संजीदा हो। पहली बार उसने मेरी दोनों हाथ थाम लिए। जब तक तुम मेरे साथ यहाँ से चलोगी नहीं, मुझे यकीन नहीं आएगा। मुझे अपनी बदनसीबी से डर लगता है। तुम्हारे साथ जाने के ख्याल ही से मेरी रूह ने बेकरार हो जाती है। वो कितनी एडवेंचर्स, कितनी हकीकी और कितनी अमली ज़िंदगी होगी। सोच लो, कड़ी धूप में तुम्हारा फूल सा चेहरा पिघला जाएगा, मगर मैं एक आज़ाद लड़की होंगी। मेरे इर्द गिर्द सोने की दीवारें नहीं होंगी। ये झूठ नहीं होगा, जो कुछ होगा सच होगा। और मैं सोचता हूँ कि जब तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझसे कोई काम नहीं होगा। मैं बस तुम्हें देखा करूँगा और मैं तुम्हें ताक में किसी मूर्ति की तरह बिठा दूँगा और तुम्हारी पूजा किया करूँगा।
जिस वक्त वो मेरे सामने बैठी दिल नशी गुफ्तगू कर रही थी, मेरे ज़हन में वही वो थी और मुझे वो लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे जिनसे मैं अपनी कैफियतों का आधार कर सकता। खिलवत के ये लम्हे कई दिन बाद मिले थे तो मैं तो एक खेल समझा था, मगर वो धीरे धीरे ना जाने किस चोर दरवाजे से मेरे नहा खाने में दर आई। जी चाहता था कि अभी उसे लेकर उड़ जाऊं, बाहर निकलूं और जंगल का रुख करूं और वहां एक कोठरी में उसे बंद कर दूं जहां मेरे सिवा से कोई ना देख सके। और फिर इस वक्त मेरे ख्वाब बिखर गए जब उसने मुझसे डाली के मुतल्लिक पूछा। ठीक है, मैंने बेपरवाही से कहा, अपने बच्चे में गुम रहती है। डाली के बारे में गुफ्तगू से बचने के लिए मैंने उससे वीनेश चंद्र का जिक्र छेड़ दिया और उसने मुझे अपने ख़ास मुलाज़िम होने का एजाज़ बख्शा है। वो तरद्दुद में पड़ गई। मैं जानता था कि उसके रद्द अमल यही होगा। मैंने उस अहदो जलीला पर अपनी आमादगी ज़ाहिर की तो वो हैरत में पड़ गई और कहने लगी, तुम पागल हो गए हो, अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो। नहीं, मैंने एतमाद से कहा, अब भी यहाँ हमारे जाने में वक़्त है। वीनेश चंद्र एक मासूम शख्स है। मैं ये नेक काम ज़रूर करना चाहता हूँ कि उसके करीब रहकर उसे काले सफ़ेद का जलवा दिखा सकूँ। मेरी नज़र में कुछ लोग हैं जिन्हें उड़िया किए बगैर मैं यहाँ से चला गया तो हमेशा एक खलश रहेगी। तुम आग में हाथ डाल रहे हो, ये ज़िंदगी गनीमत समझो। इस जज्बातीपन से कुछ हासिल ना होगा। हमें यहाँ से क्या वास्ता जब हमने यहाँ से हमेशा के लिए जाने का फ़ैसला कर लिया है। शारदा, मैंने बदस्तूर पुरएतमाद लहजे में कहा, मैं तुमसे एक मुख्तसर मुद्दत की इजाज़त चाहता हूँ। मुझे मेरी मर्ज़ी पर चलने दो और देखती जाओ कि क्या होता है। वैसे भी बरनाए मसलहत हमें एक वक्त तो गुजारना ही है। मैं तुम्हें कभी इसका मशवरा नहीं दूंगी, वो नाराज़गी से बोली। लेकिन मेरा इसरार बढ़ता गया और जब मुझे कोई सूरत उसकी आमादगी की नज़र ना आई तो मैंने एक आखिरी हरबा इस्तेमाल किया कि हमारे अच्छे मुस्तकबल और यहाँ से उम्दगी के साथ निजात के लिए वीनेश चंद्र का कुर्ब ज़रूरी है। शारदा प्रकाश पूर्ण में मेरी ढाल थी और मैं उससे खुलकर अपने जज्बात कीदियों का इज़हार नहीं कर सकता था। वक़्त कम था, किसी वक़्त भी कहीं से कोई शख्स शारदा के कमरे में नाज़िर हो सकता था। मैंने महेश चंद्र और प्रकाश चंद्र की पुरइसरार मौत के बारे में उसके जज्बात उभारे। नतीजा वो बेअकरा नीम रज़ामंद हो गई। मुझे यकीन था कि वीनेश चंद्र मेरे बारे में उससे पूछेगा तो वो मेरी अच्छाइयाँ ही बयान करेगी। मैं शारदा की सुर्ख उंगलियों को बोसे दे रहा था कि मालती दीदी जी पुकारती हुई आ गई और इस दौरान में हम संभल गए थे। मालती ने कुछ शुबा ज़रूर किया होगा, मगर वो ऐसी बातों की आदी थी, साफ नज़र अंदाज कर गई और मैं भी कोई तासर दिए बगैर चुपके से बाहर निकल गया। शारदा ने मुझे आज बहुत शादमान किया था। कल मैं शदीद बुखार में हज़ियान बक रहा था और आज मेरे ज़हन के तमाम दरीचे रोशन थे। दूसरे दिन सुबह ही सुबह शारदा के पास जाने के बजाय मैं वीनेश चंद्र की खिदमत में हाज़िर हो गया। मुझे उसने इसी तरह आज भी इज़्ज़त बख्शी और खुशकिस्मती से आज उसने तन्हाई में बातें करने का मौका मिल गया। मैंने किसी ताख़ीर के बगैर राजदाना अंदाज में उसे मशवरा दिया कि वह नए मुलाज़मों को अपने करीब रखते वक्त होशियारी का सबूत दे। उसके जहन में शुबहात उभारने के लिए मैंने दबे लफ्ज़ों में उससे जगदीप जैसे दोस्तों और राज दरबार के लोगों से तल्लुकात रखने में एहतियात बरतने की दरख्वास्त की। मैं इशारों करार में गुफ्तगू कर रहा था, चुनाचा तफसील पूछने और असल नाम जानने के लिए वो मुस्तरब हो गया। सब सामने आ जाएंगे साहब, मैंने पुरयकीन लहजे में कहा। बस डटे रहें और ज़रा यकसू हो जाएं। उधर वीनेश चंद्र के मुलाजमों की फहरिस्त तरतीब दी जा रही थी। भून के नए ढांचे में जगदीप के अलावा उसके दूसरे दोस्त भी उसे मशवरा देने में पेश थे। भून के तमाम मुलाजमों को यके बाद देगरे तलब किया जाता था और उनके माजी, करदार और मुलाजमत की उम्र की छानबीन की जा रही थी। वीनेश चंद्र के दोस्तों का अमल दखल मेरे लिए कोई खुशगवार गुन बात नहीं थी। ताहम जहाँ तक मेरी रसाई थी मैं उसे मोहतात रवि की तलकीन कर सकता था। मैं उसका मशीर ख़ास तो नहीं था, मगर मेरे बारे में किसी ने इसलिए बात पुरस नहीं की कि मैंने अपना ज़्यादातर वक्त वहीं गुजारना और उसके दोस्तों और महज़ब अंदाज में अपनी खातर मदारत का हदफ बनाना शुरू कर दिया। वीनेश चंद्र प्रकाश बून की आँख मचोली में कच्ची टिकिया की हैसियत रखता था। यही बाम कि मैंने तमाम खतरों के बावजूद यहाँ ठहरने और पेशकदमी करने का इरादा किया, मगर अब उसके दोस्तों की अंजमन अड़ाई और मशावरत देख के मेरे अज़ाइम के जोश में खासी कमी आने लगी थी। फिर मैंने अपने आप को कनात पर मजबूर किया और इन्हीं हालात में अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने के मंसूबों पर गौर किया। मैं अपने अंदर एक ज़हीन और जुरातमंद आदमी को करवटें लेते हुए महसूस कर रहा था। मुमकिन था कि हालात दूसरे होते अगर शारदा अपना गुदाज का एतमाद ना बख्शती।
शायद मेरे हाथों कुछ और खून हो जाते और मैं इत्मीनान से अपनी सज़ा को पहुंच जाता, जिसके फैसले में देर हो गई थी। और उस रोज़ मेरी तबीयत सदर दरवाजे के बाहर की दुनिया देखने के लिए मचल रही थी और मुझे किसी ने नहीं रोका। मैं आसानी से सड़क पर आ गया। शाम का वक्त था। रियासत राजेपुर की साफ़ व शफाफ सड़कों पर ज़िंदगी की रौनक छाई हुई थी। दुकानें रोशनियों से जगमगा रही थी। राजेपुर कोई बड़ा शहर नहीं था, लेकिन बहुत उजला, रोशन और साफ़ सुथरा इलाका था। घूमते घामते मैं ख़ास बाज़ार में पहुंच गया और किसी बच्चे की तरह हैरत से एक एक चीज़ को देखने लगा। मेरी जेब में दीनिश के अता किए हुए रुपये थे। दुकानों की चमक दमक और ज़िंदगी की अफाली ने मुझे इस कदर मुतासर किया कि मैं एक दुकान में दाखिल हो गया। मैंने वहाँ से एक अंगूठी खरीदी और फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने डाली के लिए तो कुछ लिया ही नहीं। उसके बालों के लिए जूड़ा और गुड्डे के लिए टाफ़ियाँ और खिलौने खरीदे। ख़रीदारी करते वक्त आदमी छोटा मोटा बादशाह बन जाता है। मेरी जेब में ज़्यादा रकम होती तो मैं कई शो केस कीसों का सामान खरीद लेता। मैं रात तक यूं ही बेमकसद टहलता रहा और चलते चलते एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां तबले और घुंघरों की आवाज़ें आ रही थी। जैसे मेरे सीने में किसी ने घौंसा मारा, जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में पकड़ लिया और मुझे अपनी बानो याद आ गई। तो बीते दिनों की हर बात नश्तर चुभोने लगी और मेरे कदम खुद ब खुद एक बाला खाने की तरफ उठने लगे, जैसे वहाँ बानो मौजूद हो। जब मैं अंदर पहुंचा तो एक गुल बदन रकासा थिरक रही थी और उसके लबों से नगमे फूट रहे थे। मैं चंद लम्हों के लिए दरवाजे पर जम कर रह गया और मुझे किसी ने चौंकाया तो होश आया। तशरीफ़ रखिए, रकासा ने मेरे करीब आकर कहा, और वही बानों का अंदाज, वही बालाखाना, और मैं खोए हुए अंदाज में एक तरफ बैठ गया। मेरी आंखें सब कुछ देख रही थी और कान सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसने क्या सुनाया और कैसा गाया। मैं अपनी अदाओं के क्या तीर चलाए। मैं एक मुजरम की तरह कोने में दुबका बैठा था और मुझे गुमसुम देख कर वो मेरे पास आ गई और कहने लगी कि आपको ये गज़ल पसंद नहीं आई। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और लुकरत ज़्यादा लहजे में जवाब दिया, आप तो कमाल गाती हैं, आप हुनर में ताक हैं। कहाँ? वो मचल कर बोली, और अभी मुझे क्या आता है? और फिर इश्तियाक अमीर लहजे में बोली, आप फ़न शनास मालूम होते हैं, क्या इसी शहर में क़याम है? मैंने उसका जहर कानों में उंडेला और जवाब दिया, हाँ, ये बदनसीब इन्हीं दिनों यही मुकीम है और ज़िंदगी भुगत रहा है। खूब, आप ज़ाबे ज़ौक़ मालूम होते हैं। ऐसी दिलकश बातें यहाँ कौन करता है? राजेपुर के लोग बड़े नफीस हैं, मगर वो शाइस्तगी कहाँ जो उद में मिलती है। वो नाज से बोली, और आप कहीं इधर ही के मालूम होते हैं। हाँ, मैंने बेख्याली में कहा, अब कोई वतन नहीं है। जहाँ पनाह मिल गई उसी को वतन समझ लिया, जहाँ नहीं मिलेगी मर जाएंगे। अरे आप तो शायर मालूम होते हैं, यकीनन आप कोई फ़नकार हैं, बहुत बड़ा फ़नकार। और मैंने ज़हर खान से कहा, क्या करते हैं आप? और वो सरापा इश्तियाक बन गई। जब कोई माकूल जवाब सोच रहा था कि उसे आवाज़ देकर बुला लिया गया और मेरी जेब में जितनी रकम थी वो मैंने उसके हवाले कर दी और खड़ा हो गया। वो हैरत से मुझे देखती रह गई और दरवाजे पर आकर बोली, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? आप तो बैठे ही नहीं, दोबारा तशरीफ़ लाइएगा। कनीज़ को रागनी कहते हैं। अभी कुछ दिनों यही क़याम रहेगा, आप आएंगे तो मसरत होगी। और हाँ, मैं आपका नाम। और वह शर्माते हुए बोली, मैं दोबारा आऊँगा। मैंने यशासत से कहा, रहा नाम तो तुम में एक बेनाम शख्स हूँ, नाम तो शुरफा के होते हैं। ये क्या कर मैं जीना उतरने लगा। खूब, उसकी हंसी ने निचली सीढ़ी तक मेरा साथ दिया। मैं तेज कदमों के साथ उस बाजार से निकल आया और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, मबादा मुझे बानो नज़र आ जाए। मैं वापसी के सारे रास्ते बानों से नज़रें चुराता रहा और वो मुझे अपने पीछे लपकती हुई महसूस होती रही। मीर जमशीद आलम ठहरो, और बानों को किसके पास छोड़ आए हो? मैं ठठक कर रुक गया। मैं क्या करूं? और कौन का वक्त उसे भूल सकता है? लेकिन मैं वहां कैसे जा सकता हूं? मैंने अपने दिल को तसल्ली दी, ये एक बेहतरीन मौका है। मैं सदर दरवाजे से बाहर आ गया हूं और आसानी के साथ यहां से फरार हो सकता हूं। अब बानो की माँ और बख्तावर की कत्ल की वारदात को बहुत दिन गुजर चुके हैं। मैं हुलिया बदल के कलकत्ते जा सकता हूं और बानो की खैरियत पूछ सकता हूं। मुझे उसके लिए ये खतरा मुँह लेना चाहिए, ना जाने वो किस हाल में हो। अभी बात खुल के कहाँ आई है? मैं अंधेरे में रहकर वहाँ कैसे जा सकता हूँ? अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो मेरे मुतल्लक बानो की रही सही उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। मगर ताब के जारन से ना कोई ना राब्ता कायम है, ना मैं उसे खत लिख सकता हूँ। अंधेरा तो तारी रहेगा जब तक उसे दूर करने की कोई सबील नहीं की जाएगी।
میرے ذہن میں کشمکش جاری تھی۔ ہاں، میں پرکاش بھون کی چار دیواری سے باہر تھا۔ پہلے تو وہاں سے باہر آنے پر پابندی تھی، اب نجات کا دروازہ ہوا۔ وہ تو میرا گریز بے بینی تھا۔ پرکاش بھون میں بھی کچھ بھی ہو، میرا اس سے کیا واسطہ تھا؟ میں نے طے کر لیا کہ مجھے پرکاش بھون جانے کی بجائے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، لیکن جنون کی یہ لہر لمحوں میں گزر گئی۔ پرکاش بھون میں شاردا بھی تو ہے، اور ڈالی۔ میرے دماغ میں گرہیں پڑ گئیں اور میں نے انہیں کھولنے کی اذیت سے بچنے کے لیے یوں ہی رہنے دیا۔ میرے قدم پرکاش بھون کی طرف اٹھ رہے تھے۔ ابھی میں بھون سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ہوں گا کہ ایک شخص نے میرا راستہ روک لیا، اور میں نے سنبھل کر دیکھا تو کرچھے والا پنڈت ایشوری لال تھا۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ کرچھا اب بھی اس کے ہاتھوں میں تھا اور اس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ مہاراج، میں نے سٹ پٹاتے ہوئے کہا، تم؟ ہاں میں، موہن بابو میں۔ پنڈت کے لہجے میں پہلے جیسی گرمی اور تلخی نہیں تھی۔ اس کی زبانی اپنا نام سن کر مجھے کچھ اطمینان ہوا، اور میں نے نیاز مندی سے پوچھا، سیوک سے کچھ کام آ پڑا مہاراج؟ ہاں، وہ قدرے جھجک کر بولا، میں تجھ سے اس دن کی क्षमा چاہتا ہوں۔ میں غلطی پر تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے کون سے گھر پر تیر چلایا ہے۔ میں سمجھا نہیں مہاراج، میں اس کی باتوں سے چکرا گیا۔ میں سب جان گیا ہوں بالک، وہاں کوئی اور ہوتا تو اسے بھی یہی کچھ دیکھنا پڑتا جو میں نے دیکھا۔ پنڈت کا لہجہ مشکوک نہیں تھا۔ مہاراج، میں نے وضاحت طلب نظروں سے اسے گھورا، چھوڑ دے یہ باتیں، غلطی سادھوں سنتوں جوگیوں پنڈتوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو بڑا بھاگیا والا ہے۔ میری آنکھوں میں دھول آ گئی تھی جو میں کچھ نہ دیکھ سکا۔ تیرے ماتھے کی چمک اور لکیریں بھی مجھے نظر نہیں آ سکیں۔ پنڈت نے شرمساری سے کہا، کبھی کبھی ادھر لکشمی کے مندر میں بھی آ جایا کر، مجھے سمے دیکھ کے میں تیرے پاس آ جایا کروں، اور کچھ پنڈت سادھوؤں کا بھی وچار کیا کر۔ جی، میں نے حیرانی سے کہا، اور پھر سوچا کہ پنڈت مجھے کسی جال میں پھانسنے کی ترکیب تو نہیں کر رہا۔ اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اور اس کی اپنائی تو عجز اور انکساری میری سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن میں نے اب کے زیادہ تعجب کا اظہار نہیں کیا اور کہا، مہاراج ضرور درشن دیجیے، سیوک آپ کے گھر میں آپ کا سواگت کرے گا۔ رہا مندر میں آنے کا معاملہ، تو میں بڑا پاپی ہوں اور مندر میں آتے ہوئے گھبراتا ہوں۔ ارے تو ایک خود مندر ہے، پنڈت نے کہا، پر بالک آیا کر، اور میرے لیے کوئی کام ہو تو بتانے سے مت جھجکنا۔ بس اپنا ذرا خیال رکھیے گا مہاراج، لوگ الٹی سیدھی باتیں کر دیتے ہیں اور بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں، اور میں نے سوچا کہ جب پنڈت خود ہی آمادہ اتفاق ہے تو کیوں نہ اس سے بے جھجک بات کی جائے۔ میں آؤں گا، وہ پرعزم لہجے میں بولا، میں تیرے پاس آیا کروں گا۔ ضرور مہاراج، ضرور درشن دیجیے، میں نے خندہ پیشانی سے جواب دیا۔ پنڈت نے کرچھے میں سے ذرا سی راکھ کی چٹکی بھری اور اسے تلک کے طور پر میرے ماتھے پہ چپکا دیا، اور صدائیں لگاتا ہوا مجھے متحیر چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ اس کا اتفاق میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں جتنا بھی غور کرتا الجھتا جاتا، طرح طرح کے وسوسے، اندیشے میرے ذہن میں ابھرنے لگے۔ میرے پاس کیا رکھا تھا جس پر پنڈت اس وارفتگی سے مر مٹتا؟ یا تو پنڈت ڈالی پر عاشق ہو گیا تھا، یا اسے میری اندیدہ خوبیوں کا سراغ مل گیا تھا جن کا علم مجھے خود نہیں تھا۔ میرے اعصاب و حواس کے نظام میں کوئی ایسی خوبی ضرور تھی جو گاہے گاہے ایک مخصوص کیفیت سے گزر کر آئندہ کے واقعات کا مشاہدہ کر لیا کرتا تھا۔ حالانکہ مشاہدے کی یہ قوت میرے اختیار میں نہیں تھی، اور اب طویل مدت سے میں ایسی کیفیت سے نہیں گزرا تھا۔ پھر کیا تھا؟ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال نے سر اٹھایا، کہیں وہ کیچو کے بارے میں مضطرب نہ ہو۔ مگر میں اس خیال پر بھی قانع نہ رہ سکا، اس لیے کہ خود کیچو کے بارے میں کیا جانتا تھا۔ پنڈت ایشوری لال میرا الجھا ہوا ذہن اور الجھا کے چل دیا۔ میری زندگی میں کوئی چیز واضح نہیں تھی، ہر طرف ٹمٹماتی ہوئی امیدیں تھیں، آدھے اجالے اور آدھے اندھیرے سے میری آنکھیں دکھنے لگی تھیں۔ پرکاش بھون میں میری عدم موجودگی صرف شاردا نے محسوس کی۔ جب میں نے اسے اس کا ہاتھ پکڑ کے انگلی میں انگوٹھی پہنانے کا ارادہ کیا تو اس کا چہرہ دمکنے لگا، رخساروں سے سرخ آگ برسنے لگی۔ یہ تم کہاں سے لے آئے ہو موہن؟ اس نے بے چین ہو کر پوچھا۔ میں اسے چرا کر نہیں لایا ہوں، بازار سے نقد رقم ادا کر کے لایا ہوں جناب، میں نے فخریہ لہجے میں کہا۔ میں نے چوری کو کب کہا تھا؟ تم بہت وہ ناراض ہو کر بولی۔ میں نے اس کے وہ انگلی منہ میں رکھ لی اور جس میں اس نے انگوٹھی پہنی تھی، اور میرے منہ میں رس ٹپکنے لگا۔ اس نے اپنی انگلی کھینچنی چاہی تو میں نے اسے دانتوں میں دبا لیا۔ وہ کراہنے لگی اور مجھے اس کی اذیت سے بڑا لطف آیا، اور میں نے اپنا سر اس کے آغوش میں دے دیا۔ اور جب میں ڈالی کے پاس اس کا جوڑا لے کر گیا تو اس کا عالم عجیب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے۔ اس نے فخر اور ممنونیت کی نظروں سے تو مجھے دیکھا ہی تھا۔ وہ بے تحاشا مجھ سے لپٹ بھی گئی اور سسکنے لگی۔
मैंने उसकी कमर में हाथ डालकर अपना सर उसके शानों पर रख दिया। उसके लंबे स्याह बाल मेरी गर्दन पर फैल गए। बहुत मुश्किल से मैंने उसके आंसू खुश्क किए, वरना उसका सैलाब थमते थमते ना थमता। फिर गुड्डा मेरी गोद में आया और मैंने उसे खिलौने दिए, टॉफियां खिलाई। वो चहकने और मचलने लगा। रात को वो देर तक नहीं सोया, अपने खिलौनों को छूता और हंसता खेलता रहा। और सोने को आया तो अपनी माँ की बजाय मेरे साथ सोने के लिए फैल गया और मैंने उसे बादलों के लिहाफ में छुपा लिया। दूसरी सुबह वीनस चंद्र के महल में पहुंच के मैं हैरान रह गया। वहां बसात उल्टी हुई थी। जयपाल की जगह एक नापसंदीदा शख्स भटनागर विराजमान हो चुका था और उसके माताहतों में भी ऐसे आदमी थे जिन पर पारो के आदमी होने का शुबा किया जा सकता था। भटनागर एक नहायत दुरुस्त मजाज और मामूली पढ़ा लिखा शख्स था। खुशामद अच्छी कर लेता था और छोटे मुलाजमों पर रोब भी अच्छा जमा लेता था। तनतोश के एतबार से किसी बड़े बैल से मुशाबा था और वहाँ का रंग ही बदला हुआ था। भटनागर और उसके मताहतों ने मेरी पजीराई में तंग दिली का सबूत दिया। मैं वीनस चंद्र के कमरा खास में हस्बे मामूल दाखिल होने वाला था कि भटनागर की करख्त आवाज़ ने मुझे रोक लिया। किधर जा रहे हो? मैंने सूरत हाल का अच्छी तरह जायजा ले लिया था। किसी तरद्दुद के बगैर मैंने जवाब दिया, अंदर जा रहा हूँ। किसकी इजाज़त ली है? भटनागर ने सख्ती से पूछा। महाराज कुमार से, मैंने दिलेरी से जवाब दिया। ठहरो, मैं पूछ के आता हूँ, उसने जिड़ कर कहा। लेकिन मैंने कोई परवाह नहीं की और दरवाजे पर खड़े हुए संतरी को बाजू फैलाकर मैंने अपने रास्ते से हटा दिया और अंदर दाखिल हो गया। भटनागर इश्ताल अंगेज हालत में मेरे पीछे पीछे भागा हुआ आया। उस वक्त तक मैं वीनस चंद्र के सामने पहुंच चुका था और पारो भी वहां बैठी थी। मुझे देख के उसकी आंखों में बिजली सी चमकी। राज दरबार के कुछ सरकर्दा लोग भी वहां मौजूद थे। मेरी आमद से वीनस की होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट नमूदार हुई। आओ मोहनदास, रात शारदा ने तुम्हारी बड़ी तारीफ की है। मैंने अदब से सर झुका लिया। वो पारो से मुखातब होकर बोला, हमने इसे अपने खास आदमी मुकर्रर किया है। हमने उसे शारदा से मांग लिया है। पारो ने खुसरवाना शान से मेरी तरफ निगाह की और बोली, महेश चंद्र भी इसका बहुत ख्याल रखते थे। ये बड़ा जंगली है, बहुत वफादार आदमी है। वीनस ने अंग्रेजी में कहा। बेहद, और पारो के लहजे का जहर सिर्फ मैं समझ सकता था। वीनस के मुंह से मेरे शान में यह कलमात सुनकर भटनागर खामोशी से बाहर खिसक गया। मैं वीनस के अहकाम की तामील में मसरूफ हो गया। वो अपने मेहमानों की तवाज़ा के लिए मुझे से मुखातब हो रहा था। उधर मैंने महसूस किया कि पारो की निगाहें मेरे जिस्म में चुभ रही हैं। नीली साड़ी में उसका सागर बदन छलक रहा था और हुस्न में कुछ और निखार आ गया था। वो क़यामत बनी हुई थी। बिलाशुबा वो प्रकाश बूंद की हसीन लड़कियों में से एक थी। उसकी पतली कमर साड़ी से झांक रही थी और उसे कई बार आंखें चार हुई। पारो ने महेश के बाद अब वीनस के गिर्द अपना हल्का तांग करना शुरू कर दिया था। मगर वो चाहती क्या थी? उसने महेश चंद्र को क्यों कत्ल करवा दिया? उसका मकसद समझ में नहीं आता था। और जब तक ये मामला हल ना होता उस वक्त तक ना तो वीनस की रहनुमाई की जा सकती थी, ना खुद कोई कदम उठाया जा सकता था। अंधेरे में सिर्फ तीर चलाए जा सकते थे, जिनमें से कोई तीर वापस आके खुद को भी जख्मी कर सकता था। पारो वहां से चली गई तो वीनस चंद्र के महल से अपने फरायद अंजाम देने और शारदा की एक झलक देखने के बाद मैं अपने क्वार्टर में वापस आ गया। देर तक गूनागू ख्यालात में मेरे ज़हन पर गालब रहे और जहन का ये तख्लीकी अमल उसी लम्हे शुरू होता है जब चारों तरफ से फ़िक्रों का हजूम बढ़ रहा हो, बशर्ते कि उस हजूम से घबराया ना जाए बल्कि तख्लीकी कुव्वत सिर्फ की जाए। मैं रात तक सोचता रहा, तख्लीक और इज़हार लाज़िम व मलज़ूम हैं। तख्लीक मुकम्मल नहीं होती जब तक इज़हार नहीं होता। इज़हार के बगैर तख्लीक का होना ना होना यकसा है। डाली सो चुकी थी। मैं एक मजबूत इरादे से उठा। सबसे पहले मैंने बाग से शारदा का पिस्तौल निकाला और वीनस चंद्र के महल की जानब चला गया। मेरी आमद कोई गैर मुतवक्का बात नहीं थी। मैंने अंदर का एक चक्कर लगाया और चुपके से उस हिस्से की तरफ अपना जिस्म मुंतकिल कर लिया जिससे पारो की ख्वाबगाह मुतसल थी। उसका रास्ता मुझे बखूबी मालूम था। मैं राहदारी में बैठे हुए बाद मुलाजमों को सलाम करता जवाब देता हुआ पारो के दरवाजे पर पहुंच गया और आहिस्ता से दस्तक देने लगा। महेश चंद्र के 100 के दिन जारी थे, इसलिए प्रकाश बूंद में रंगबादी का कारोबार सर्द पड़ा हुआ था। दस्तक पर कोई जवाब नहीं आया और मैंने दोबारा कोशिश की तो अंदर से पारो की रसीली आवाज़ आई। कौन? मैंने आहिस्तगी से कहा, मोहन। उसने दरवाज़ा खोल दिया और मुंह निकाल कर तोशी से बोली, क्या काम है? इस वक्त कैसे आई? मैंने मुंह पर उंगली रख दी। खामोश रहिए पारो, मैं एक बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ, अंदर आके बताऊंगा।
میں دوسرے ہی لمحے اندر تھا اور پارو نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس نے شب خوابی کے لباس میں اپنا بدن چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کمرے میں معطر ہوائیں بسی ہوئی تھیں۔ کیا ہے؟ اور میں نے ایک نگاہ دوڑائی اور سرگوشی میں پوچھا، کوئی ہے تو نہیں؟ بہت رازداری کی بات کرنی ہے، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں ہے، تم اطمینان سے بات کر سکتے ہو، اس نے بظاہر وقار سے جواب دیا۔ خوابگاہ کی جالی دار کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور میں نے جاتے ہی پستول اپنے نیفے سے نکال لیا۔ سنیے، میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، تمام کھڑکیاں بند کر دیجیے۔ اس نے میرے لہجے پر غور کیا اور اس کی نظر اس پستول پر بھی پڑی جو میرے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ وہ سی کر کے رہ گئی اور بگڑتی ہوئی بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جو میں کہتا ہوں وہی کرو، میں نے گرج کر کہا۔ یقیناً اسے مجھ سے ایسے لہجے کی توقع نہیں ہوگی۔ وہ تز بز میں پڑ گئی۔ میں نے اسے دوبارہ حکم دیا تو وہ جھجکتی اور میری صورت دیکھتی ہوئی کھڑکیوں کی طرف بڑھی۔ میرے اشارے پر کھڑکیاں بند کر دی گئی اور ان پر پردے ڈال دیے گئے۔ خوابگاہ کا دروازہ بھی بند کر لیا گیا۔ میں نے غسل خانے میں بھی ایک نظر جھانک کے دیکھ لیا اور ہر طرح سے مطمئن ہو گیا۔ میرے سوا وہاں کوئی نہیں تھا اور پھر میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور پستول جیب میں رکھ لیا۔ پارو رانی، مجھے آپ سے بہت ضروری باتیں کرنی تھی، یہاں قریب آ کر سنیے۔ وہ میرے پاس چلی آئی اور میں نے کوئی بات کرنے سے پہلے اس کے خوبصورت بدن کا سر سے پیر تک جائزہ لیا۔ نقاش نے اسے تراشنے میں ایک ایک باریکی کا خیال رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر رنگ آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ کبھی تمکنت کا رنگ چڑھ جاتا، کبھی خوف کا، کبھی امید کا، کبھی مایوسی کا۔ چند لمحوں تک تو میں اس کوثر قضا سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر قابو میں نہیں رہا، میرا ہاتھ اٹھ گیا اور میں نے ایک بھرپور تمانچہ اس کے رخسار پر رسید کیا۔ اس کا توازن بگڑ گیا اور لڑکتی ہوئی فرش پر گر گئی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ پارو رانی، مجھے ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے افسوس ہے، مگر تم عورت نہیں ہو۔ تم نے مجھے اس قدر بے غیرت اور نامرد کیوں سمجھ لیا تھا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ وہ میرے ہاتھوں سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہارا مقصد کیا ہے؟ وہ لرزتے ہوئے بولی۔ میں نے اسے بستر پر دھکیل دیا۔ میں آپ کے کچھ قرضے ادا کرنے آیا ہوں۔ مہیش چندر کو قتل کراتے وقت آپ نے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا، اور میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دیں، مجھے نیند سے بیدار کر دیا۔ تم اس وقت بھاگ کیوں گئے تھے جب کہ میں نے تمہیں تحفظ کا پورا یقین دلایا تھا؟ آپ کمال کرتی ہیں سرکار، آپ نے روشنی بجھا دی تھی اور خود منظر سے غائب ہو کر یہ اعلان کرنے گئی تھی کہ موہن نے مہیش چندر کو قتل کر دیا۔ پھر ہوتا یہ کہ آپ کے زر خرید ملازم اندر تشریف لاتے اور اشتعال میں مجھے قتل فرما دیتے۔ میری آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی اور آپ کے جرم کا ہر ثبوت مٹ جاتا۔ بہرحال آپ نے بڑی خوبصورتی سے بدلے ہوئے حالات میں سوچا، یہ امرداد کے قابل ہے۔ میں زندہ بچ گیا، اور اس سے پہلے بھی مہیش چندر کتے نے میرے پیچھے پلے چھوڑے تھے۔ آپ نے ان سب کا انجام دیکھ لیا تھا۔ مہیش کی آپ سے کون سی بات چھپی ہوئی تھی؟ آپ تو اس کی رازدار تھیں۔ تمہیں غلط فہمی ہے، وہ خوف زدہ وقار سے بولی۔ جی ہاں، اور اب آپ نے وینس چندر کے لیے جو نقشہ ترتیب دیا ہے وہ بھی میری غلط فہمی ہے۔ کان کھول کر سن لو پارو رانی، میں وہ نہیں ہوں جو تمہیں اوپر سے نظر آتا ہوں۔ میں اتنا ہی اندر بھی ہوں، اور مجھے بدقسمتی یہاں کھینچ لائی تھی۔ یہاں آ کے میں نے آپ بڑے لوگوں کا جلوہ دیکھا، آپ کو دیکھا۔ میری بات سنو، وہ صلح کن لہجے میں بولی۔ جو تم سوچ رہے ہو وہ غلط ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مہیش چندر تمہیں مارنا چاہتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا آدمی تھا، بہت ظالم اور سنگ دل۔ اس کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ یقین کرو، جب وہ تم سے سخت لہجے میں بات کرتا تو مجھے بے حد دکھ ہوتا تھا۔ اس نے مجھ سے بھی یہ کچھ وعدے کیے تھے، مگر پرکاش چندر کی موت کے بعد وہ بدلتا گیا اور آخر مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ ہاں، اب آپ جو دلیل چاہیں دیں، لیکن پارو رانی مجھے کوئی دلیل قائل نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ جو آدمی آپ نے وینس چندر کی طرف بھیجے ہیں انہیں وہاں سے ہٹا لیجئے، اپنے ارادوں سے باز آ جائیے، ورنہ اور کچھ نہیں ہوگا، مجھے آپ کے خون سے ہاتھ رنگنے پڑیں گے۔ اور یہ بات گرہ میں باندھ لیجئے کہ آپ میرے خلاف کسی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہاں میرے گرگے بھی چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، میں نے اپنا انتظام کر لیا ہے۔ آپ نے کوئی غلطی کی تو آپ کے پاس پچھتانے کے لیے بھی وقت نہیں ہوگا۔ Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it